Are you struggling in getting your desired score in IELTS and especially in the writing module? So what happens sometimes is sometimes you're unable to get the grammar correct and sometimes your task response comes out to be less than 5. And in both the cases, your score will never reach the band score of 6 or higher. But trust me, this is not a rocket science. All that has been going wrong is that you are relying too much on templates and formats, whereas all that you really need is to use your common sense. Hi everyone, my name is Sanjana Arora and I'm a certified IELTS trainer. Today in this video, we are going to discuss in detail a very important IELTS question, and above that, we are going to see how to write causes and solution based essay in order to get the maximum marks possible. So let's get started. So the question that we are having today is, some people get into debt by buying things they don't need and can't afford. What are the reasons for this behavior? What actions can be taken to prevent people from having this problem? So you see, the question is telling us that it is talking about what? It is talking about consumerism. That आजकल हो क्या रहा है, लोग कर्जे में जा रहे हैं, उधार में जा रहे हैं. क्यों? Because they are developing the habit of buying things जिनकी ना तो उन्हें जरूरत है ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं. उसके बाद उसने उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपसे नहीं पूछी हैं. उसने आपसे क्या पूछा है? What are the reasons for this behavior? ऐसा क्यों हो रहा है? तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो आपसे क्या जानना चाहता है? वो आपसे जानना चाहता है why is this happening? और सेकंड वो क्या जानना चाहता है? We'll see it from the second question. What solutions can be taken to prevent people from having this problem? और उसके बाद वो पूछ रहा है कि इस प्रॉब्लम से लोगों को हम बचा कैसे सकते हैं. You see that how two questions have been very clearly asked in the question that has been presented to you. So when you are writing your essay, the first thing that you need to take care of is that please answer what has been asked. अब इसमें अगर आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखाओगे तो नो मैटर चाहे आप बहुत अच्छी वोकैबुलरी भी यूज कराओ, you will not get score. So answer what you have been asked. This is not your university or your school exam in which you are going to get marks for filling the paper. You are going to get marks if you write what you have been asked to write. So let's see how we'll write the introduction. तो देखो, सबसे पहले तो बेसिक चीज ये है that you always have to start with an introduction and end with conclusion. ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, दिस आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन अनदर वीडियो एंड आई लिंक दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, सो गो चेक दैट वीडियो ऑल्सो. बट इन अ समरी, स्टार्ट आपने हमेशा इंट्रोडक्शन से करना है, जिसमें आपके मेन एलिमेंट्स क्या रहेंगे. सबसे पहले यू हैव टू राइट एन इंट्रोडक्टरी लाइन. याद है स्कूल वाले टाइम पे जो बच्चे स्पीच देते होते थे वो कैसे बहुत ही ड्रामेटिक सी ओपनिंग करते थे. वो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर से शुरू नहीं करते थे. पहले वो कुछ बोलते थे, उसके बाद गुड मॉर्निंग करते थे, उसके बाद बात कहते थे. दैट इज वॉट इज योर जनरल लाइन. तो जनरल लाइन में हमने कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा कोई भी एक बेसिक ट्रेंड उठा के लिखना है. अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है? In contemporary society, maintaining a luxurious lifestyle is often seen as a marker of success. तो हमने यहाँ पे हमारी जनरल लाइन क्या दी है कि सोसाइटी में लग्जूरियस लाइफस्टाइल होने को हम एक सक्सेस का पैरामीटर समझते हैं. फाइन, ये मेरी क्या होगी? जनरल लाइन होगी. उसके बाद हमने क्या करना है? वी हैव टू स्टार्ट पैराफ्रेजिंग. व्हाट डू वी मीन बाय पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग मीन्स जो स्टेटमेंट है आपके क्वेश्चन की, मतलब जो फुल स्टॉप वाली लाइन है ना क्वेश्चन में, उसको आपने और कोई वर्ड्स में लिखना है इंट्रोडक्शन में आफ्टर योर जनरल लाइन. सी हाउ आई हैव रिटन इट ओवर हियर. Consequently, many individuals purchase expensive items beyond their financial means. तो देखो, बात मैंने वही करी है जो उसने वहां लिखी है, बस मैंने अपने वर्ड्स चेंज कर दिए. आप और भी कोई बना सकते थे. फील फ्री टू पैराफ्रेज दिस लाइन एंड ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल चेक इट एंड आई विल टेल यू कि ये सही है गलत है और इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता था. सो pause the video right now and do the paraphrasing and leave it in the comment section below. उसके बाद आपने क्या करना है? आपने लिखनी है thesis statement. I have made this essay more advanced by giving a gist of what I'll be talking about. So what I am saying is, this behavior is primarily driven by the desire for social status and the influence of demonstration effect. सो मतलब मैंने यहीं पे बताना शुरू कर दिया कि मेन रीजन क्या है, ये हो क्यों रहा है.
Nevertheless, this issue can be mitigated by cultivating gratitude and financial literacy. तो मैंने solution भी बता दिया. तो मैंने क्या किया, instead of writing this essay will delve into the reasons for which this problem is emerging and also suggest some resolutionary measures, मैंने इस essay को क्या किया, थोड़ा सा advance कर दिया और जो मेरे main points होने थे ना उनको मैंने introduction में ही अपने दे दिया. फाइन, अब इन्हीं पॉइंट्स को मैं आगे अपना एलैबोरेट करूंगी. मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कोई नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक जिस्ट जो है वो यहाँ पे दे दिया. आई होप इंट्रोडक्शन इज क्लियर. एंड अगर आप इस क्वेश्चन को कुछ भी लिखोगे ना, इफ यू ट्राई राइटिंग द इंट्रोडक्शन और एनीथिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू चेक इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो प्लीज keep on pausing the video after understanding everything and keep on writing it simultaneously, because see, until and unless you write, you are not going to understand how to write. जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, जितने मर्जी फॉर्मेट्स देख लो, जब तक खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना, सुनते हुए, जैसे जब टीचर समझा रही है साथ साथ में नहीं लिखोगे, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है. सो पॉज दिस वीडियो, write the introduction and after that resume the video once again. अब देखो क्वेश्चन इसने आपसे क्या पूछे हैं, कॉजेज और सॉल्यूशन. तो दो ही चीजें पूछी हैं, दो ही हमने बीपी बनाने. तो उसको सिंपल रखने के लिए व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज कि एक पैराग्राफ अपना रखो जिसमें आप अपने कॉजेज बता दो और दूसरे में क्या करो, सॉल्यूशंस बता दो. इससे क्या होगा, बहुत ही क्लैरिटी रहेगी एग्जामिनर को भी रीड करते हुए और आपको भी थॉट डेवलपमेंट करना जो है वो काफी ज्यादा कंपैरेटिवली इजी रहेगा and it will come out to be more effective. So let's see how I've started it. There are several reasons why individuals overspend on unnecessary items. तो किसी भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसमें रीजंस आपको बताने हैं, तो आप उसको इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हो. ये कॉपी में नहीं आएगा आपका. There are several reasons why, और उसके बाद जिस भी चीज के आपको रीजंस बताने हैं वो आपने वहां पे फिल कर दिया. फाइन. There are several reasons why individuals overspend on unnecessary items. Now I'm telling the first reason and I'm making it very clear that I'm telling the first reason. And see how I'm doing it. Firstly, many people equate their social status with material possession and believe that owning the latest goods will elevate their significance in society. So यहाँ पे मैं अपना पॉइंट बता रही हूँ कि मैंने कहा था ना ऊपर भी कि इससे क्या होता है, हमें लगता है सोसाइटी में हम सक्सेसफुल हैं, ये दिखाया जाता है इस चीज से. तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी है कि पीपल इक्वेट देयर सोशल स्टेटस. इक्वेट मीन्स जब हम किसी चीज को किसी और के इक्वल रखते हैं विद मटीरियल पोजेशंस एंड बिलीव दैट ओनिंग द लेटेस्ट गुड्स will elevate their significance in society. Elevate का मतलब क्या होता है, increase. This desire to project an image of affluence leads to excessive spendings even if it means going into debt. और उसके बाद मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये होता कैसे. तो मैंने सिर्फ पॉइंट देख के छोड़ा नहीं है, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करी है. और ये जो आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करते हो ना, इसी से आपको टास्क रिस्पॉन्स में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. सो प्लीज एक्सप्लेन योर पॉइंट्स प्रॉपरली. And then I am giving an example also. For example, it is common for individuals to take out loans to buy high-end products such as the latest smartphone to appear affluent to their peers. तो ये करके मैंने क्या किया, अपना पॉइंट खत्म किया. पॉइंट में मेरे क्या क्या आया, स्टेटमेंट आई सबसे पहले, फिर एक्सप्लेनेशन आई और उसके बाद क्या आया, मेरा एग्जाम्पल आया. Now I am moving to my second point. Moreover, the demonstration effect plays a significant role in driving this trend. फिर उसके बाद मैं उसी चीज को आगे एक्सप्लेन करती हूँ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के बारे में बात करके. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है कि आपने किसी और को देखा इसलिए आपका वो चीज लेने का मन है. ठीक है, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं. टू एक्सप्लिकेट, individuals from lower or middle income groups often mimic the spending habits of wealthier individuals. This imitation is fueled by constant exposure to images of opulence through social media and advertisements. अब देखो, मैं मानती हूँ आपको लगेगा कि मैंने बहुत हाई एंड वोकैबुलरी वर्ड्स यूज किए हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये मेरी लिखी हुई चीज है. इफ यू आर राइटिंग एंड यू आर यूजिंग सिंपलर वर्ड्स, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस as long as what you are writing makes sense and what you are writing is in correct English. So vocabulary use करना बहुत जरूरी नहीं है. vocabulary हमेशा ना धीरे धीरे करके डेवलप होती है. So don't stress yourself for vocabulary. Focus इस पे रखो कि टास्क रिस्पॉन्स पूरा कैसे करना है और ग्रामर कैसे पूरी करनी है. Because trust me, अगर ये दो चीजें पूरी कर दी ना, 7 बैंड्स आने से कोई नहीं रोक सकता.
चलो अब आगे देखते हैं. As a result, they purchase expensive goods to emulate the lifestyle of the rich, despite not having the financial means to do so. कि emulate क्या होता है? किसी को कॉपी कर रहे होना या उन्हीं की तरह कुछ चीज कर रहे होना. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या किया? रीजंस अपने एक्सप्लेन कर दिए, और सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या एक्सप्लेन करना है कि ये होने से हम कैसे लोगों को बचाएं. सो दैट इज व्हाट वी आर नाउ सपोज टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. अब देखो इसको मैंने कैसे लिखा है. टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इट इज एसेंशियल. और आप भी जो भी आपको सॉल्यूशन देना है, आप अपना पैराग्राफ हमेशा ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इट इज एसेंशियल टू, जो भी चीज आपकी आंसर में आएगी वो आगे, प्रमोट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड फाइनेंशियल लिटरेसी. और आगे अब मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी. प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस. अच्छा, मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं वर्ड्स की कि आप इसकी जगह और क्या वर्ड यूज कर सकते थे, बट आपने एग्जामिनर को नहीं देनी है. आपने एक ही वर्ड चूज करना है और एक ही वर्ड लिखना है, चाहे आपको 5 सिनोनिम आते भी हो. आपने एग्जामिनर को कहीं पे भी ऑप्शन नहीं देनी है. ओके. Practicing gratitude or thankfulness helps individuals appreciate what they already have, reducing the urge to acquire more. कि अगर हमें शुक्राना सिखाया जाए तो जो हमारे पास है हम उसे अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, जिससे हमारी सब कुछ और चीजें लेने की जो इच्छा है, अनडाइंग डिजायर है, वो खत्म हो सके. Engaging in a regular gratitude exercise, such as maintaining a journal, can foster contentment. Contentment means satisfaction and happiness. And diminish means reduce the desire for unnecessary purchases. उसके बाद मैं अपना सेकेंड सॉल्यूशन दे रही हूँ. एडिशनली, एनहांसिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैन इक्विप पीपल विद द नॉलेज टू मैनेज देयर फाइनेंसेस बेटर, एज एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स अबाउट बजटिंग, सेविंग एंड द रिस्क ऑफ डेट can empower them to make informed financial decisions and avoid falling into debt due to impulsive buying. अब आपने देखा कितना बड़ा सेंटेंस है ये. ऐसे सेंटेंसेस लिखने पे आईएलटीएस के एग्जामिनर्स आपको ज्यादा मार्क्स देते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि इतने लंबे सेंटेंसेस लिखने का मतलब होता है दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, एंड आपका जो एग्जामिनर है वो यही देखना चाहता है, आर यू कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज. ओके. देखो स्टार्टिंग में तो नहीं होने वाला, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप राइटिंग करोगे, जैसे जैसे आप नई नई चीजें पढ़ोगे, ट्रस्ट मी ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज टाइम के साथ ना खुद ही डेवलप हो जाती है. आप बार बार जब न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स या अपनी इवन आईएलटीएस की रीडिंग्स भी पढ़ोगे ना, यू विल सी डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग एंड योर ब्रेन विल सबकॉन्शियसली स्टार्ट राइटिंग बिगर सेंटेंसेस. बट ये ग्रामर साथ साथ जो है वो करते रहना, बिकॉज ग्रामर की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ग्रामर गलत होगी ना तो जो मर्जी कर लो बैंड स्कोर नहीं आने वाला है. And now we come to the last thing, that is your conclusion. I always say कि conclusion को बहुत ज्यादा क्रिस्प रखो, conclusion को बहुत बड़ा मत रखो, और कंक्लूजन लिखते टाइम ना अपना दिमाग ऐसा चलाओ कि जो चीज पैराफ्रेजिंग में करी थी ना वही दोबारा से करनी है. बस अपने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ का उसमें एक एक या थोड़ा सा पॉइंट जो है वो डाल देना है. देखो कैसे किया. इन कंक्लूजन, द परस्यूट ऑफ सोशल स्टेटस एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आर की फैक्टर्स ड्राइविंग पीपल टू स्पेंड बियॉन्ड देयर मीन्स. By fostering gratitude and improving financial literacy, individuals can develop a healthier relationship with money, ultimately preventing the cycle of debt induced by unnecessary spending. So you see किस तरह से conclusion is very crisp, और जितने भी points start से end तक थे वो सारे इसके अंदर cover हो गए, और एक अपने आप में बहुत बड़ा essay भी नहीं लग रहा है, right? So this is how you are supposed to write an essay. I repeat it again. Vocabulary पे focus मत करना. Focus on completing your task response, having your grammar correct, and let your vocabulary develop with time. So if you write this essay, please leave it in the comment section, and I am 100% surely telling you this thing that I am going to correct it personally, and I'll be giving you the feedback as well. And if you're wishing to enroll yourself with me for the classes, then you can either email me or you can send me a message on Instagram. And if there are any doubts, obviously feel free to ask in the comment section, and I'll see you in the next video. Bye bye.